کہ انشاءاللہ یہ منصوبہ جو مجھے ڈی جی صاحب نے اس کے تفصیلات سے آگاہ کیا ہے، اس کی لاگت 41 کروڑ 64 لاکھ ہے، اور بقول ان کے جس کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے، جس ٹھیکیدار کو، اس کے ساتھ جو معاہدہ ہے، میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو ڈی جی صاحب تصدیق فرما دیں گے، چیئرمین صاحب تصدیق فرما دیں گے، اس نے اپنے کانٹریکٹ میں معاہدے میں یہ لکھا ہے کہ 1 سال کے اندر میں انشاءاللہ اس کو مکمل کروں گا۔ 1 سال سے پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ، خدا کرے پہلے ہو جائے، انشاءاللہ۔ ہم آپ کو اور مبارک دیں گے، انشاءاللہ، ہم آپ کے گھر آ کے شکریہ ادا کریں گے اگر یہ ہو جائے۔ انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مشینری آئی کھڑی ہے سامنے۔ آپ کو مبارک ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے۔ بے شک بے شک۔ یہاں جب میں آیا تھا، مجھ سے لوگوں نے کہا تھا اعلان کریں، میں نے کہا الیاس گواہی دیں گے، میں نے کہا تھا میں اعلان نہیں کروں گا، میں وعدہ نہیں کروں گا، کوشش کروں گا۔ دیکھیے، وعدے تو پہلے بھی ہوتے رہے، ایسے بات ہے، وفا نہیں ہوئے، ابھی وہ ریکارڈنگ موجود ہے۔ الحمدللہ کوشش ہوئی، اللہ نے برکت ڈال دی۔ ویری گڈ۔ تو زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو میرے بھائیوں، میں کوئی لمبی بات نہیں کرنے آیا، آپ کو مبارکباد دینے آیا انجمن صاحب، اور دعا کرنے آیا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق دے اللہ آمین۔ کہ ہم اس علاقے کی، اپنے شہر ملتان کی اور پاکستان کی نیک نیتی سے خدمت کر سکیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرے حلقے کے ساتھیوں، میرے محسنوں، اور یہ سب محسن بیٹھے ہیں، میں کس کا چہرہ دیکھ کے کس کی طرف میں کس کا نام لوں، سب محسن بیٹھے ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے بعد جو آپ نے مجھے عزت بخشی، مجھے اس کا احساس ہے، جیوے، مجھے اس کا احساس ہے، جیو اور جیو۔ آپ اس بات کی تسلی رکھیں اور آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ کا منتخب نمائندہ، جس کو آپ نے منتخب کر کے اسلام آباد بھیجا، وہ اسلام آباد میں نہیں، دنیا کے ہر دارالخلافے میں آپ کی وکالت کر رہا ہے، آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہے، اور پاکستان کی عظمت کا جھنڈا بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیوے، یہ مجھے فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی ہے کہ میں پاکستان کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، للکار کر، پاکستان کی اساس، پاکستان کے جغرافیہ اور پاکستان کے نظریے کی دفاع کرنے کی مجھے یہ اللہ نے سعادت دی ہے۔ میری دعا ہے کہ مدینہ الاولیاء، مدینہ الاولیاء جس کو ملتان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اس کی مزید بہتری کے ہمیں مواقع عطا فرمائے۔ آمین۔ ملتان شہر کا میں آج کہہ رہا ہوں، یہ ایک منصوبہ ہو گیا، میں آج کہہ رہا ہوں، ملتان شہر کا اس وقت جو سب سے گمبھیر مسئلہ ہے اور عرصہ دراز سے ہے، وہ ملتان کا سیوریج کا ناقص نظام ہے اور پینے کا صاف پانی کی دستیابی ہے، جس سے ہیپیٹائٹس پھیل رہا ہے۔ میں آج پھر کہہ رہا ہوں، وعدہ نہیں کر رہا، کوشش کروں گا، زندہ باد، کوشش کروں زندہ گا باد۔ کہ انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے گزارش کروں اس کا مطلب ہو گیا۔ کہ یہ وہ شہر ہے اور یہ وہ ضلع ہے
जिसने तहरीक इंसाफ को एक मुनफरद कामयाबी अता की। बेशक बेशक। महमूद कुरैशी 6 कौमी असेंबली की सीटें हैं और 6 की 6 सीटें जिला मुल्तान ने तहरीक इंसाफ की झोली में डाली। बेशक बेशक ये तारीखी शहर है मदीनतुल औलिया, और इसका ये अरसा दराज से मसला है। अल्लाह ने इज्जत रखी। 30 साल से लोग पीट रहे थे सूरजकुंड रोड के बारे में। अच्छा बेशक बेशक। 30 साल से अल्लाह ने सुरखरू किया, आज वो मुकम्मल हो रही है। सुई गैस की रोड 30 साल से लोग पीट रहे थे, आज वो मुकम्मल हो चुकी है इंशाअल्लाह। मैं आज मुल्तान के दोस्तों, जिस तरह वादा किया था कि मुल्तान को जनूबी पंजाब का अहम तरीन शहर समझते हुए सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब का मुल्तान में होगा, बहुत तनकीद हुई, बहुत तंज और ताने सुने, लेकिन आपको मुबारक हो कि ये भी अल्लाह के फजलो करम से हो गया। पाया तकमील Very good, very पहुंच good. चुका है। तैनातियां हो गई हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस में अमेंडमेंट हो गई है, और मैं आज कह रहा हूं कि इमरान खान की मेहरबानी से तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जनूबी पंजाब सूबे की बुनियाद रख दी है। कोई माई कलाल अब इसको पीछे नहीं कर सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम रहे न रहे, हमारी हुकूमत रहे न रहे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ये ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि यहाँ के बच्चे और यहाँ का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह रोशन होगा। इंशाअल्लाह। दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, अल्लाह आमीन। की सलामत रखे। दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तान को अंदरूनी इंतशार से महफूज रखे, आमीन अल्लाह आमीन। और मैं आपको ये भी कहता चलूं, मेरे इल्म में है और मैंने हिंदुस्तान के मंसूबों को बेनकाब किया एक डॉसियर की शक्ल में, और वो डॉसियर आज पूरी बैन अक़वामी सतह पर उसकी तकसीम की गई है, उसकी तशहीर की गई है। और अल्लाह के फजल करम से आज जो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब है, जो उसने इंकशाफात कर दिए कि भारत 750 जाली वेबसाइट्स के जरिए, भारत सैकड़ों जाली NGOs के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जो हर्जा सराई कर रहा है, जो मनसूबा बंदी कर रहा है, वो बेनकाब हो गई है। वो आज आपके मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहता है, वो आज पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है, और आपकी दुआओं से आपकी मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की कोशिशें कर रही है। माशी तौर पर मेरे हल्के में इस वक्त जनूबी पंजाब की लूमों का मरकज है। मैं पूरी PP 215 की आवाम से पूछता हूं, और 216 में नदीम कुरैशी साहब बैठे हैं, उनके हल्के में भी हैं, 17 में भी कुछ होंगी, लेकिन ज्यादा हैं, वहां भी हैं। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं, आपको याद होगा कि आज से 2 साल पहले यही लूमें, क्या मैं सामने देख रहा हूं बहुत से दोस्त खड़े हैं जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं, मैं थोड़ा चेहरा देख रहे हैं, क्या 2 साल पहले ये लूमें
लोहे की कीमत से बिक रही थी कि नहीं बिक रही थी? बिक रही थी, ईमानदारी नाल दसो, बिक रही सी जी। अंसारियों ईमानदारी नाल दसो। कबाड़ी कबाड़ी दे रेट, कबाड़ में कबाड़ एक कबाड़ कबाड़ के रेट बन के लोहे के रेट से बिक रही है सन, मंदे हो। आज क्या वो लूमें चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही है। आज अल्लाह के फजल और करम से इतने ऑर्डर मिल चुके हैं, इतने ऑर्डर मिल चुके हैं लूमा नहीं मिल रही है। कि नई लूम नहीं मिल रही। लूमों के लिए ऑर्डर बुक किए हुए हैं, लूमें दस्तयाब नहीं है। सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। फैसलाबाद में इस वक्त लेबर नहीं मिल रही। ऐसे बात। तो दोस्तों, ये मईशत का पहिया अब अल्लाह के फजल और करम से चल पड़ा है। अब मेरे भाइयों, ये मईशत का पहिया जब चलेगा, रोजगार पैदा होगा, बेशक। घरों में सुकून आएगा, लोग बच्चियों की रुखसती कर सकेंगे, बीमारों का इलाज कर सकेंगे, बच्चों को तालीम दे सकेंगे, सरमायाकारी कर सकेंगे, मुल्क से गुर्बत कम होगी, वो पीछे खड़ा। खुशहाली आएगी। अब मैं आपसे कहने आया हूं, वो कुव्वतें कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो इस पहिए को रवा दवा देखना चाहती हैं, वो पाकिस्तान की हामी कुव्वतें हैं। जो बाजारों में रौनक देखना चाहती हैं, कारोबार चलेगा तो रौनक होगी, किसान खुशहाल होगा तो बाजारों में रौनक होगी ना भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर कारोबार नहीं चलेगा, लोगों की जेबों में कुछ नहीं होगा, तो बाजार में रौनक कैसे होगी? ऐसे बात, गुलशन मार्केट के गिर्द लोग तवाफ क्यों करेंगे? ऐसे बात, तभी करेंगे जब उनकी जेब में कुछ होगा, कुछ होगा, जब खाने का कुछ होगा। ऐसे बात। तो मेरे दोस्तों, वो कुव्वतें जो आज पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहती हैं और कारोबार को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हैं, वो आपके दोस्त हैं, चाहे उनका किसी जमात से या किसी तबके से ताल्लुक हो। और वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान के अंदर दाखिली इंतशार पैदा करना चाहती हैं, वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं। आज सुबह दुश्मन एक अफसोसनाक वाकया बलूचिस्तान में रूनुमा होता है। 11 लोगों को, कौन? मजदूर रोजी कमाने के लिए मजदूरी कर रहे हैं, उनके हाथ बांध के उनको गोलियां मार के शहीद किया गया। क्या बताओ, वो कुव्वतें जो इन मासूमों को शहीद कर रही हैं, क्या वो पाकिस्तान की दोस्त हैं? दुश्मन है, वो दुश्मन। पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करना चाहती हैं। हमें उन कुव्वतों को पहचानना है, हम उनको बेनकाब करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, हमें अपने इक़्तिदार का कोई गर्ज नहीं है। अल्लाह के फजल करम से कह रहा हूं, हम उन कुव्वतों का मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह उनको शिकस्त देकर दिखाएंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं